ویلکم بیک بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ کورنگی کے نئے ضلعی دفتر کا شاندار افتتاح شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 98ویں سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں ٹاؤن چیئرمین کورنگی نعیم شیخ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی محنت کشوں کے حقوق کی علمبردار ہے، لیبر کو منظم اور بااختیار بنائیں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پیپل لیبر بیورا ضلع کورنگی کے ضلعی دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے آغاز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 98ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، جس میں پارٹی قیادت، لیبر رہنما اور کارکنان نے شرکت کی اور شہید بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں پیپلز لیبر بیورا کراچی ڈویژن کے صدر اسلم سمو، صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کورنگی جانی میمن، جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کورنگی شرجیل رضوانی، سینئر نائب صدر شراز وحید، نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی و چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ سمیت ڈپٹی جنرل سیکرٹری پیپلز لیبر بیورا کراچی ڈویژن امین بلوچ، انفارمیشن سیکرٹری پیپلز لیبر بیورا کراچی ڈویژن عبد الوحید خان، صدر پیپلز یونٹی کے ایم سی کراچی کیپٹن شبیر جدون، کوارڈینیٹر ایم بی اے پی ایس 95 محمد نعیم ایوان سمیت پیپلز لیبر بیورا کراچی ڈویژن اور ضلع کورنگی کے عہدیداران و کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پیپلز لیبر بیورا ضلع کورنگی کے صدر عدنان حبیب صدیقی، جنرل سیکرٹری دار سعید نشفی نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز لیبر بیورا کراچی ڈویژن کے صدر اسلم سمو نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے محنت کش طبقے کو شناخت، وقار اور حقوق دیے۔ انہوں نے کہا کہ پیپل لیبر بیورا کا مقصد لیبر کو منظم کرنا، ان کے مسائل اجاگر کرنا اور انہیں آئینی و قانونی حقوق دلانا ہے۔ اسلم سمو نے کہا کہ ضلع کورنگی کو نیا ضلع دفتر محنت کشوں کے لیے ایک مضبوط اور متحرک مرکز ثابت ہوگا۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کورنگی جانی میمن نے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی آج بھی شہید بھٹو کے فلسفے پر کاربند ہے، جس کی بنیاد روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی قیادت محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ اور لیبر قوانین و پر عمل درآمد کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی محمد نعیم شیخ نے کہا کہ بلدیاتی ادارے محنت کشوں کی فلاح و بہبود میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز لیبر بیورو کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ کورنگی میں تمام پرائیویٹ سیکٹر اور سرکاری ملازمین کے مسائل کے حل، فلاحی منصوبوں اور روزگار سے متعلق اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ پیپلز لیبر بیورو ضلع کورنگی کے صدر عدنان حبیب صدیقی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ نیا دفتر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو آگے بڑھانے کی عملی مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز لیبر بیورو ضلع کورنگی میں محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ، مسائل کے اندراج اور فوری حل کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے عزم کا اظہار کیا کہ پیپلز لیبر بیورو کے پلیٹ فارم سے لیبر کو منظم، باخبر، مضبوط بنایا جائے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق مزدور دوست پالیسیاں جاری رکھی جائیں گی۔ سہراب گوٹ ٹاؤن کے چیئرمین لالا عبدالرحیم کی پیپلز پارٹی کے شمولیتی پروگرام میں شرکت۔ لالا عبدالرحیم کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی پر لوگوں کا اعتماد ہے، ٹاؤن کی سطح پر تاریخ میں سب سے زیادہ کام ہم کروا رہے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی پی ایس 97 چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کی یو سی نمبر 4 لاسی گوٹ جمال نگر میں منعقدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت پروگرام میں شرکت۔ تقریب میں وائس چیئرمین یو سی نمبر 4 نوجوان برف، فوکل پرسن 2 چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن عبید عثمانی، پارٹی کارکنان شمس خان اکاقیل، جنت گل اصغر، برف جان، محمد جانی سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس شمولیتی پروگرام میں علاقے معززین، سماجی شخصیات، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی منشور، اصولی سیاست اور بے مثال جدوجہد پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ شمولیت اختیار کرنے والوں میں علاقہ معززین میں رزاق گجر، صادق گجر، اسد علی، شفیق گجر، نوید گجر، ساجد گجر، ممتاز گجر، زفران گجر، ایاز گجر سمیت نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ صدر پی ایس 97 و چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے نئے شامل ہونے والے تمام معززین اور نوجوانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا اور مبارکباد دی۔ انہوں نے پارٹی پرچم پہنا کر پاکستانی پیپلز پارٹی کے قافلے میں شامل کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے لالا عبدالرحیم نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی قربانیوں، جدوجہد اور عوامی خدمت کی روشن تاریخ رکھتی ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بے نظیر تک پیپلز پارٹی کی قیادت نے ملک و قوم، جمہوریت اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی پیپلز پارٹی کا منشور آئین کے بالادستی، عوامی حاکمیت، سماجی انصاف اور محروم طبقات کی آواز بننے پر مبنی ہے۔ لالا عبدالرحیم کا کہنا تھا کہ نوجوانوں اور علاقہ معززین کی بڑی تعداد میں شمولیت اس بات کا واضح پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے دلوں میں زندہ ہے اور انشاءاللہ یہی عوامی طاقت ملک کو ترقی، استحکام اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے مسائل کے حل اور بہتر مستقبل کے لیے اپنی جدوجہد پوری قوت کے ساتھ جاری رکھے گی۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کورنگی کی جانب سے تاریخی پیش رفت نادرا اور ٹی ایم سی کورنگی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے، جس سے کراچی کی عوام کو بڑا ریلیف ملے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
कराची में अवामी सहूलियात के फ़रोग़ की जानिब एक अहम और तारीखी कदम उठाते हुए नादरा रीजनल हेड ऑफिस कराची और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के दरमियान एक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए, जिसके तहत कोरंगी में एक जदीद, वसी और मुकम्मल सहूलियात से आरास्ता नादरा मेगा सेंटर कायम किया जाएगा। ये मनसूबा न सिर्फ जिला कोरंगी बल्कि मोहल्ले के इलाकों के लाखों शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा। इस मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम, जिला सदर कोरंगी जानी मेमन, डीजी नादरा आमिर अली खान, पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदगान और ओहदेदारान, बल्दियाती क़यादत, मौज़िज़ समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज तक फराहम करने के अज़्म पर कारबंद है और कोरंगी में नादरा मेगा सेंटर का क़याम इसी विज़न की अमली शक्ल है। उन्होंने कहा कि शनाख्ती दस्तावेज़ात हर शहरी की बुनियादी ज़रूरत और कानूनी हक है और इस मेगा सेंटर के क़याम से शहरियों को अब तवील फासले तय करके दूसरे अजला में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए, हमने तो उनको वेलकम किया था और आपके इल्म में है कि वो जहाँ जहाँ भी जाना चाह रहे थे उनको वहाँ प्रोटोकॉल हर चीज़ दी गई। बागी जिना के लिए परमिशन भी उन्होंने ख़ुद मांगी थी, जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन उसके बावजूद उनको परमिशन मिल गई। लेकिन उसके बावजूद भी हैदराबाद में भी उन्होंने जाके, आपके इल्म में है कि उन्होंने एक बयान शुरू कर दिया कि जी सिंध गवर्नमेंट ने तो हमें की है, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट साहब पर तनकीद की 2 दफ़ा और वहाँ पे भी हैदराबाद में सिक्योरिटी रीज़न के लिहाज से उनको दूसरे रास्तों से लाया गया। यहाँ भी उन्होंने कहा कि जी हम जलसा वहाँ नहीं करेंगे, रोड पे करेंगे। ज़ाहिर है जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती थी, अगर रोडों पे जलसे हुए तो पूरा कराची चौक हो जाता है, फैमिलीज़ को तकलीफ़ होती है, एम्बुलेंसेस को तकलीफ़ होती है। तो फिर आपने देखा कि उससे एक शुरू हो गया तनाव, और वो जो एक सियासत है, हमारे दोस्त यहाँ पे पीटीआई के भी मौजूद हैं, लेकिन उनसे माजरत के साथ कि जो एग्रेसिव सियासत है ना, शिद्दत पसंदी की, इंतहा पसंदी की, उसके अंसर की वजह से ये इशू आए। लेकिन आपने देखा सिंध गवर्नमेंट ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। अगर वक्ती तौर पर कुछ शरपसंद लोगों को गिरफ्तार किया भी गया तो फिर उनको छोड़ दिया गया। नजमी आलम और जानी मेमन ने अपने खिताब में कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी खिदमत और शहरी सहूलियात की फरहमी को अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। कोरंगी जैसे गुंजान आबाद जिला में जदीद नादरा मेगा सेंटर का क़याम अवामी मुश्किलात में नुमाया कमी लाएगा और इंतजामी निज़ाम को मजीद मुयस्सर बनाएगा। उन जमातों का जो जमातों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद है, उन्होंने देखा कि ये कोरंगी के लिए, अवाम के लिए फैसला हुआ है। खास तौर पे जमात इस्लामी से लोग, तहरीक इंसाफ के लोग और MQM पाकिस्तान की MP यहाँ मौजूद है। ये इस बात की दलील है कि पीपल्स पार्टी मफाहमती सियासत पर यकीन रखती है और सबको साथ लेके चलती है। मैं शाह साहब, हमारे 27 महीने हो चुके हैं और हमने मुख्तलिफ करारदादे पास किए हैं और ये हुस्न है हमारे कोरंगी का, जहाँ जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के कौंसिल के रुकन है और हमारी सारी करारदादें पास होती हैं। तमाम लोग हमारे सारे कामों की सपोर्ट करते हैं। मैं इस भरी महफिल में तमाम तकरीबन कोरंगी लानी से बिरादरियां मौजूद हैं। अब्बासी बिरादरी के मुझे नजर आ रहे हैं, हमारे यूसी के चेयरमैन भी हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूं। और शाह साहब, मैं आपके तवस्सुस से, अली राशिद भाई, नजमी भाई के तवस्सुस से, नादरा के जो आमिर साहब DG साहब हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा, बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर, यहाँ तिलिस्मिया का भी टेस्ट होगा सर, यहाँ पाक ID काउंटर भी होगा, विरासती सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और असले लाइसेंस की भी यहाँ पर एक काउंटर होगा। 30 काउंटर हमारे यहाँ बनेंगे और मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि पासपोर्ट का भी काउंटर यहाँ बनाया जाए। और ये बिरादरियां ये जितनी भी देख रही है आपके सामने, उसके साथ साथ इलेक्शन जब होगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी बैठे हुए होंगे, यहाँ पर चेयरमैन वाइस चेयरमैन जमात इस्लामी के भी बैठे हुए होंगे, यहाँ पर MQM पाकिस्तान की मखसूस नशिस्त की MPA भी बैठी हुई होगी, यहाँ पर वो न्यूट्रल लोग भी बैठे हुए होंगे जिनका किसी पार्टी से वास्ता नहीं होगा,
लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है अवाम की खिदमत करना और इसी तरीके से करती रहेगी। अवाम जब वोट देगी वो जब का जब पता चलेगा, लेकिन यकीन जरूर रखते हैं जो चेंज आ रहा है, आने वाला मुस्तकबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस डिस्ट्रिक्ट में होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हमने हमेशा ये कराची की भलाई के लिए ही फैसले किए और इस कोरंगी ज़िले में हम हमेशा से आते रहे हैं। आज तरक्याती कामों के इफ्तिताह के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे वो वक्त भी याद है हम सिर्फ जनाजे पढ़ने आते थे। यहाँ पर हम जनाजे पढ़ने आया करते थे, अपने वर्करों की लाशें उठाने आया करते थे, लेकिन हम साबित कदम रहे। हमने अपने शहर को अमन देना था, हम साबित कदम रहे और आज हम यहाँ खड़े हैं और अल्लाह का शुक्र है कि पूरा कोरंगी पीपल्स पार्टी के नाम से गूंज रहा है, क्योंकि हमारी जद्दोजहद, नाजरा के चीफ ने कहा कि उसमें आम लाइसेंस का भी होगा। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि कराची में कोई आम लाइसेंस ना बनवाए, ये हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हमने बहुत असला देख लिया, बहुत लाशें कराची में गिरती हुई देख ली। अब मज़ीद हम नहीं चाहते कि हमारी यंग नस्ल इसमें जाए। और जहाँ तक नईम शेख है, नईम, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं कह सकता हूँ बड़े दिल से कि आए और कोई नईम शेख का मुकाबला, क्योंकि इनकी जो काम है, ये लोग यही समझते हैं कि भाई सीवरेज काम सही कराना है, पानी सही कराना है, रोड बनानी है, सफाई करनी है, लेकिन विजनरी आदमी इनका आईटी सेंटर बताता है जो इन्होंने बनाया है, जो मुस्तकबिल को सोच के, ये इनके काम में शामिल नहीं है, लोकल बॉडी के इनके शामिल नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने काम से बढ़ के किया। ये नादरा ऑफिस की जो इन्होंने फैसिलिटी दी है यहाँ के लोगों को, इसके लिए मैं डीजी साहब आपका भी शुक्र और राशिद आपका भी किया, और जानी मेमन साहब आपने भी बिल्कुल अच्छा फैसला किया। यकीनन हम आपकी खिदमत करते रहेंगे कोरंगी। और आज भी ये जो नदी बंद हो जाती थी, इस पे फ्लाईओवर जो बन रहा है, लोकल गवर्नमेंट बना रही है, इसके बाद कितनी भी बारिश हो जाए कोरंगी वालों का और इंडस्ट्रीज़ के लोगों का रास्ता बंद नहीं होगा, ये आराम से आएंगे। कितनी बारिश हो, ये सारे हमने देखा है कि ये बारिशों में रास्ता बंद हो जाता था। अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह जो चेयरमैन साहब ने इफ्तिताह किया था 1200 बेड के हार्ट डिजीज़ हॉस्पिटल का, वो भी कोरंगी के बॉर्डर पे है। जब वो बनेगा तो ये तमाम चीज़ें जो हेल्थ में हम कर रहे हैं पूरे शहर में, पूरे सिंध में, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। डीजी नादरा आमिर अली खान ने इस मौके पर बताया कि कोरंगी मेगा सेंटर जदीद टेक्नोलॉजी, तरबियत याफ्ता अमले और डिजिटल सहूलियात से आरास्ता होगा, जहां शहरियों को शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट कार्ड, बे फार्म, फैमिली रजिस्ट्रेशन, जानशीनी सर्टिफिकेट और दीगर नादरा खिदमात इंतहाई तेज रफ्तार और शफाफ तरीके से फराहम की जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारा चौथा मेगा सेंटर है जो पिछले 4 महीने में अनाउंस करने जा रहे हैं। पहले 4 मेगा सेंटर्स थे हमारे DHA में, सफूरा में, मेगा ईस्ट में और सीमेंस में और नॉर्थ नाज़माबाद में। एक हमने मलीर में हम एक मेगा सेंटर बनाने जा रहे हैं, गुलबर्ग में बनाना चाह रहे हैं, और सुरजानी टाउन इंशाल्लाह हम हमारा मेगा सेंटर फरवरी के एंड या मार्च में हमारी उसकी इनाग्रेशन है। सो दिस विल बी द 4th मेगा सेंटर जो कि कराची के लोगों के लिए इस मेगा सेंटर में तकरीबन 40 लाख के लोगों के आबादी के लोगों को हम एंटरटेन करेंगे। 30 काउंटर्स होंगे, ये 24/7 राउंड द क्लॉक चलेंगे विद 3 शिफ्ट्स। और इसमें जो एरियाज़ हैं, जिस एरियाज़ को ये करेगा कवर, वो उसमें लांडी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर मॉडल कॉलोनी, शकरा रोड, बिन कासिम, स्टील टाउन, इब्राहिम हैदरी, कयूमाबाद और इसके गुरदनवार। यहाँ पे हमारा सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा जो हमारा विरासतनामा है, जो आपकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ख्वाह वो पंजाब में हो या KPK में हो या कहीं पे भी हो, आप यहाँ पे बैठ के अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी डिजिटल सिंध के सिलसिले में मेरी बड़ी क्लोज़ कोऑर्डिनेशन चल रही है सिंध गवर्नमेंट के साथ, और मेरा प्लान है कि जिन आगे वाले आने दिनों में मैं अली के साथ IT के शोबे में हम किस तरह इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हाल ही में हमने
یونین کاؤنسلز کو ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے. ہماری موبائل ایپ ہے. اب آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوگی, ہم نے 14 اگست کو ہماری موبائل ایپ لانچ کی ہے پاک آئی ڈی کے نام سے. میں آپ لوگوں کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ وہ موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. کورنگی میں قائم ہونے والا نادرا میگا سینٹر 30 ون ونڈو کاؤنٹرز پر مشتمل ہوگا, جہاں روزانہ 2500 سے 3000 درخواست گزاروں کو بیک وقت سہولیات فراہم کرنے کی گنجائش ہوگی. اس کے علاوہ میگا سینٹر میں خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے, جن میں جانشینی سرٹیفکیٹ کاؤنٹر, پاک آئی ڈی کاؤنٹر, سیلف سروس کاؤنٹر, تھیلیسیمیا اسکریننگ ٹیسٹ کاؤنٹر, اسلحہ لائسنس کاؤنٹر, بزرگ شہریوں اور معذور افراد کے لیے علیحدہ خصوصی کاؤنٹر. نادرا کا مکمل زونل آفس. یہ میگا سینٹر نادرا کے جدید ڈیجیٹل نظام سے منسلک ہوگا, جس سے شہریوں کو کم سے کم وقت میں خدمات کی فراہمی ممکن بنائی جائے گی اور لاکھوں شہریوں کے لیے ریلیف. کورنگی لانڈی, کورنگی کریک, شاہ فیصل کالونی, ملیر ماڈل کالونی, چکرا گوٹ, بن قاسم اسٹیل ٹاؤن, ابراہیم حیدری, قیوم آباد اور اطراف کے دیگر علاقوں کے تقریباً 40 لاکھ سے زائد شہری اس میگا سینٹر سے مستفید ہوں گے, جو اب اپنی تمام نادرا سے متعلق خدمات ایک ہی چھت تلے حاصل کر سکیں گے. تقریب کے اختتام پر شرکا نے نادرا اور ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کورنگی کے اس اشتراک عمل کو عوام دوست اقدام قرار دیتے ہوئے سندھ حکومت اور بلدیاتی قیادت کے ویژن کو سراہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ یہ منصوبہ ضلع کورنگی کی مجموعی ترقی اور شہری سہولیات میں انقلابی بہتری کا باعث بنے گا. شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے ٹاؤن کے خوش نصیب ملازموں کو عمرے پر جانے کی مبارکباد دی اور پاسپورٹ ان کے سپرد بھی کر دیے. تفصیلات اس رپورٹ میں. چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک اور وائس چیئرمین طارق محمود بنگش نے کہا ہے کہ ملازمین ہماری طاقت ہیں اور ادارے کی کامیابی آپ کی محنت, دیانت اور خلوص کی مرہون منت ہے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہر مشکل گھڑی میں عوامی خدمت کو مقدم رکھا. آج جو سہولتیں اور مواقع آپ کو دیے جا رہے ہیں, ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ مزید اطمینان اور وقار کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں. عمرے کی شہادت ہو یا دیگر فلاحی اقدامات, یہ سب آپ کے لیے ہماری قدردانی کا اظہار ہیں. گوہر خٹک نے کہا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ شفافیت, میرٹ اور انصاف ہماری اولین ترجیحات رہیں گی. آئیں مل کر ایسا نظام قائم کریں جہاں ملازم بھی مطمئن ہو اور عوام بھی خوشحال ہو. آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے شاہ فیصل ٹاؤن کے جو ملازمین ہیں وہ انشاءاللہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا اور قرآن اندازی کی تھی وہ عمرے پہ کل چلے جائیں گے. اور اس سے بڑھ کے خوشی مجھے یہ ہو رہی ہے کہ وہ زندگی میں پہلی بار عمرہ کرنے جا رہے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے در پہ اور پیغمبر علیہ السلام کے در پہ بلایا ہے, تو خوشی کی بات ہے اور پہلی مرتبہ جا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی, ہماری نیت تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں, دیکھیے جی میں آپ کو بتا دوں کہ شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ سندھ حکومت ہمیں کوئی فنڈ نہیں دیتی ہے. فنڈ تو تھوڑے کوئی ہمیں پیسے نہیں دے, کوئی ترقیاتی اسکیم دیتے وہ بھی نہیں دیتی ہے, کیونکہ انہیں پی ٹی آئی سے ہم سے مسئلہ ہے رہے. میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جتنے بھی کام کر رہا ہوں وہ ٹیکس جمع کر کے کر رہا ہوں. ٹیکس کا عوام کا پیسہ ہے, وہ ہم جمع کر کے کام کر رہے ہیں. اچھا اگر یہ ہمیں 2-4 کروڑ روپے دے رہے ہوتے تو ہمارے کروڑوں روپے کے پروجیکٹ پہ کھڑے ہو کے وہ کر رہے ہوتے تشریح کہ سندھ حکومت کرا رہی, یہ کھڑے نہیں ہو سکتے, ہمیں فنڈ ہی نہیں دیتے. تو میں یہاں پر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے شاہ فیصل ٹاؤن کی ٹیم کا, انتظامیہ کا, جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمیں ٹیکس جمع کر کے دیتے ہیں, جو دن رات عوام کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. میرے پیچھے ایک پوری ٹیم ہے شاہ فیصل ٹاؤن کی, اور یہ سارے ان کی محنت کا نتیجہ ہے. ہمارے ترقیاتی کام بھی چل رہے, پچھلے سال 70-80 کروڑ روپے کیے تھے, اس سال انشاءاللہ 1 ارب روپے سے اوپر کے ترقیاتی کام کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ یہ ملازمین, ان کی جو بقایا جات ہے ان کا میں خیال رکھ رہا ہوں, کیونکہ انہیں ملازمین کی وجہ سے ٹاؤن چل رہا ہے. یہ لوگوں کو خدمت کرتے ہیں, غریب طبقہ تنخواہوں پہ چل رہا ہوتا ہے, کسی کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے, کسی کا مکان کرائے کا ہوتا ہے, 100 مسئلے ہیں. تو میری کوشش یہ تھی کہ ان کی جو بقایا جات ہے وہ بھی ہم نے کلیئر کر دیے, شکر الحمدللہ. اور ان کی سیلری بھی ہم ٹائم پہ کرا دیتے ہیں, جو ہمیں 10 کروڑ روپے آتے ہیں ان کی سیلریوں میں چلے جاتے ہیں. کوشش ہوتی ہے 2-3 تاریخ کو ان کی سیلری ہو جائے. اور بھی ان کی جو سہولیات ہے, میری کوشش یہ ہے کہ میں انشورنس کے ساتھ بات کروں, کوئی اچھی پالیسی اگر ہمیں مل جاتی ہے. ہمارے پاس وسائل کی بڑی کمی ہے, پیسہ نہیں ہوتا, ٹیکس جمع کر کے کام کرنا بڑا مشکل ہے. تو کوشش یہ ہے کہ ان ملازمین کی جو بھی خدمت ہم سے ہو سکے علاقے کی اور عوام کی تو ہم کرتے, ان کی بھی کریں ساتھ ساتھ, کیونکہ ان کی وجہ سے, ان کی بدولت ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں. ٹاؤن کو کلک اور ورلڈ بینک کا جو مشترکہ پروجیکٹ ہے,
उन्होंने पिछले साल हमें कोई 17 करोड़ रुपए की स्कीमें दी थी। वो पिछले साल की 17 करोड़ स्कीमों में से अभी तक एक ही स्कीम कंप्लीट हुई है। अच्छा, वो भी मैंने उनको आधी आधी स्कीमें दी है। अब मैं अगर उनको सीवरेज के साथ रोड के साथ सीवरेज भी दे दूँ और स्ट्रीट लाइटें भी दे दूँ तो एक ही स्कीम में सब कुछ निपट जाएगा। वो जितने हमारे साथ काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा काम हम कर रहे हैं। वो जितने रोड बना रहे हैं उस रोडों पे सीवरेज लाइन हम डाल के दे रहे हैं, उनको स्ट्रीट लाइटें हम लगा के दे रहे हैं, पानी की लाइनों कोई मसले तो वो हम करा रहे हैं। मैंने उनको सिर्फ रोडें दी हुई है, जो 10-12 रोड है जो गलियों की, वो ऐसे हैं मैं जहाँ भी जाता हूँ कोई कहता है 25 साल से रोड नहीं बना है, कोई कहता है 20 साल से नहीं बना है। तो मज़ाफ़ाती इलाकों के मैंने उनको रोड दिए कि आप इनमें रोड डालें। और जहाँ जहाँ ये मेरा वो है कि जहाँ तरीक़ाकार है काम का, या अपने लोगों को मैंने कहा है कि जहाँ रोड डलेगा रोड से पहले सीवरेज लाइन डलेगी, क्योंकि रोड डलने पे पहली बारिश में टूट जाता है। तो हर जगह हम पहले सीवरेज लाइन डालते हैं, उसके बाद रोड डालते हैं। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि 25 टाउन है, शाह फैसल उसमें अवलीन पे है कि पहले नंबर पे है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे भी लोगों को भेज रहे हैं। और जो भी वादा चेयरमैन जनाब गौर खटक साहब और हमारी टीम करती है वो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो तरक्याती प्रोजेक्ट हों या टाउन के एम्प्लॉइज़ की बकायाजात हों, चाहे वो LPR हो या उनकी जो भी चीज़ें हैं जो बकायाजात हैं, और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का जो हम लोगों ने स्टेप लिया है, ये इन लोगों की दुआएं और इनकी मेहनत है जिससे अब आपके सामने फेयर कुरानंदाजी हुई रमज़ानों के अंदर, लेकिन लेट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वादा पूरा किया और आज भेज रहे हैं। कल इंशाल्लाह ये रवाना हो जाएंगे और आने वाले दिनों में दोबारा इंशाल्लाह हम कुरानंदाजी कराएंगे और कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा लोगों को भेज सकें। चेयरमैन गौहर खटक ने उम्रे की अदायगी पर जाने वाले खुश नसीबों को मुबारकबाद दी। वेलकम बैक। और अब खबर शामिल करें कि चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने बल्दियाती नुमाइंदों और अफसरान के साथ पंपिंग स्टेशन का दौरा किया और अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अवाम की फलाह के लिए कामों को तेज करने और रुकावटों को खत्म करने की हिदायत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मंगोपीर टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने जिला वेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आबिद सत्ती, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर का छेलो, म्यूनिसिपल कमिश्नर मंगोपीर टाउन अहमद यार, वाइस चेयरमैन मंगोपीर टाउन राना मोहम्मद आरिफ, यूनियन कौंसल 97 के सदर सत्तार बरोही, यूनियन कौंसल 11 के चेयरमैन मोर खान, यूनियन कौंसल नंबर 9 के वाइस चेयरमैन असद अली बरोही, चीफ इंजीनियर जोन 3 गुलाम मोहम्मद हब, सुप्रीडेंट इंजीनियर वेस्ट, XCN सेवरेज और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दीगर आला अफसरान के हमरा मंगोपीर टाउन के पंपिंग स्टेशन का हंगामी और तफसीली दौरा किया। दौरे का मकसद मंगोपीर टाउन में पानी की फराहमी से मुतल्लिक दरपेश मसाइल, खुसूसन पानी की लीकेज, मशीनरी की कारकर्दगी, तकनीकी नुक्स और निज़ाम में मौजूद दीगर खामियों का मौके पर जाकर बारीक बीनी से जायजा लेना था। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और मुतल्लिका अफसरान से तफसीली ब्रीफिंग हासिल की, जबकि आवाम को दरपेश मुश्किलात और शिकायत से भी आगाह किया। इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान को हिदायत की कि पानी से मुतल्लिक मसाइल महज आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल मेयारी और पायदार हल यकीनी बनाया जाए, ताकि मंगोपीर टाउन के शहरियों को मुस्तकबिल में पानी की किल्लत और बार बार की शिकायत से निजात मिल सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी मफाद के मंसूबों में किसी भी किस्म की कोताही या गफलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के आला अफसरान ने इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन को मुकम्मल यकीन दहानी करवाते हुए बताया कि पंपिंग स्टेशन में मौजूद तमाम लीकेज और तकनीकी मसाइल को फौरी तौर पर दूर किया जाएगा, जबकि मुरम्मती और बेहतरी के काम को जदीद इंजीनियरिंग तकाजों के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा, ताकि पानी की फराहमी का निज़ाम बेहतर, मुस्तहकम और देर पा बनाया जा सके। चेयरमैन हाजी नवाज अली बरोही ने कहा है कि मंगोपीर टाउन के आवाम को साफ, शफाफ और मुसलसल पानी की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है और इसी मकसद के तहत वो खुद फील्ड में मौजूद रहकर तमाम तरक्याती और अवामी नौयत के मंसूबों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ मुकम्मल हम आहंगी के साथ अमली इकदाम जारी रहेंगे। दौरे के इख्तिताम पर तमाम शरीक रहनुमाओं, मुंतखब नुमाइंदों और अफसरान ने इस आज़म का इजहार किया कि मंगोपीर टाउन में पानी के मसाइल के हल के लिए बाहिमी ताउन, शफाफियत और तेज रफ्तारी के साथ काम किया जाएगा, ताकि अवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ फराहम किया जा सके। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी नज़ीर भुट्टो ने करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले लिंक रोड का दौरा किया और काम की क्वालिटी और मेयार को चेक किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने यूसी चौकंडी की आवाम को सफरी सहूलियात फराहम करने के हवाले से करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले लिंक रोड का दौरा किया और काम की क्वालिटी और मेयार को चेक किया। इस मौके पर इलाका मौजूदीन, पार्टी कारकुनान और शहरियों ने टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो का वालेहाना इस्तकबाल करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की और बल्दियाती सहूलियात फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा है कि यूसी चौकंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है। यहाँ की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट किया है। इलेक्शन के वक्त आवाम से जो वादे किए थे उन्हें बल्दियाती सहूलियात की सूरत में पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत में यकीन रखती है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर आवाम को बिला तफरीक बल्दियाती सहूलियात फराहम कर रहे हैं। आवाम को पीने के साफ पानी, सेवरेज और पेवर ब्लॉक समेत दीगर बल्दियाती सहूलियात देकर हमने अपना फर्ज अदा किया है। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने आवाम के मसाइल हल किए हैं। बाकी पार्टियां सिर्फ बातें करती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमली काम पर यकीन रखती है। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा है कि मैं बिलावल भुट्टो का सफीर हूँ। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर पर अमल करते हुए आवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर टाउन मेंबरान हाशिम लाशारी, मक्खी ओधामल, सत्तार हन्नाइती, जाम जमील लाशारी, गनी गबोल, टाउन अफसरान सुहेल मल्ला, पार्टी रहनुमा, इलाका मौजूदीन और शहरी बड़ी तादाद में मौजूद थे। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने दावत इस्लामी के वफ़द से मुलाकात की और कहा कि हमारा मिशन है कि हम लोगों को सहूलियात फराहम करें। महदूद वसाइल में रहकर बेहतर खिदमत अंजाम देने के लिए बल्दियाती नुमाइंदे और अफसरान एक पेज पर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया ने कहा है कि महदूद वसाइल के बावजूद औरंगी टाउन की आवाम को बिला तफरीक बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए औरंगी टाउन की तमाम यूसीस में काम कर रहे हैं। औरंगी टाउन की आवाम को बल्दियाती सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुँचाएंगे। औरंगी टाउन को मॉडल टाउन बनाएंगे। इन ख्यालात का इजहार टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया ने टाउन वाइस चेयरमैन गफान सगीर सद्दीकी के हमरा दावत इस्लामी के वफद, औरंगी टाउन की मुख्तलिफ यूसीस की सियासी, समाजी, दीगर इलाकाई मौजूदीन के वफद और क्लिक के नुमाइंदों से अपने दफ्तर में मुलाकात करते हुए किया। दावत इस्लामी के वफद ने टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया को उम्रे की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी और शब मेराज के हवाले से मुनक्किदा महाफिल में शिरकत की दावत दी। दावत इस्लामी के वफद ने मसाजिद और महाफिल के मकामात के रास्तों को हमवार, सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स की फरहमी, पीने के पानी की फरहमी, सेवरेज लाइन की लीकेज की बंदिश और जरूरी नौयत के कामों की निशानदही की। टाउन चेयरमैन ने दावत इस्लामी के वफद तमाम कामों के शब मिराज से कबल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि शब मिराज से कबल बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए उलमा कराम और मसाजिद के मुंतजमीन की मुशावरत से इंतजामात को कबल अज वक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर मौजूद वसाइल को बरोए कार लाया जाएगा। औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों की सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और दीगर इलाकाई मौजूदीन ने चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया से मुलाकात की और औरंगी टाउन के बल्दियाती मसाइल पर गुफ्तगू की। इन मौजूद शख्सियात ने टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया से मुलाकात को खुश आइन करार दिया और कहा कि जिस तरह आप औरंगी टाउन के बल्दियाती मसाइल को हल करने के लिए ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं, इससे औरंगी टाउन के आवाम के मसाइल में बेहतरी आएगी। इन शख्सियात ने टाउन चेयरमैन हाजी जमील ज़िया और वाइस चेयरमैन गफान सगीर सद्दीकी के तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बादे अज़ा क्लिक के नुमाइंदों ने टाउन चेयरमैन को उम्रे की सादत पाने पर मुबारकबाद पेश की और फूलों का हार पहनाया और गुलदस्ता पेश किया। गुलशन इकबाल डिवीजन की मुख्तलिफ मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई दौरान ऑपरेशन मुतादिद ठेले पथारे जब्त कर लिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा इंसदाद तजावुज़ात बल्दिया उस्मा कराची की गुलशन इकबाल डिवीज़न की जानिब से राशिद मेनहास रोड, आलादीन पार्क, इतवार बाजार के अतराफ में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसका मकसद ट्रैफिक की राह में हायल होने वाले ठेलों पथारों को हटाना, जब्त करना था। दौरान ऑपरेशन एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने ट्रैफिक की रवानी को बहाल करवा दिया है। मौके पर मौजूद डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राना ने कहा है कि हमने इतवार बाजार की इंतजामिया को भी पाबंद किया है कि इतवार बाजार के दाखिली रास्ते पर इंतजाम को बेहतर किया जाए ताकि ट्रैफिक जाम के मसाइल से बचा जा सके और साथ साथ ही वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों को भी कहा कि रक्षा कार पार्किंग का कोई बेहतर इंतजाम किया जाए जिनकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर न हो। उन्होंने कहा कि मेयर कराची का हुक्म है कि शहर भर से तजावुज़ात का सफाया किया जाए। हम इसी हुक्म की तामील कर रहे हैं।
गुलशन इकबाल टाउन की इंतजामिया एक और सानहे की मुंतज़िर। लोगों से अभी सानहा नीपा भुलाया ना गया और टाउन इंतजामिया नए सानहे का इंतजार करने लगी। गुलशन इकबाल टाउन में गटरों की सूरत हाल आमिर आवान की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। इब्राहिम गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ और पूरे शहर को सोगवार कर गया, जिम्मेदारों को झंझोड़ गया, मगर वो जिम्मेदार ही क्या जो सानहे से सबक सीख जाएं। यही देख लीजिए, गुलशन इकबाल टाउन सानहे पर सबसे ज्यादा शोर जमात इस्लामी ने मचाया। उन्हीं के टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल डॉक्टर फवाद के इलाकों में गटर के ढक्कन गायब हैं। शहरी कहते हैं इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली के सबब आवाम को कभी जाने देनी पड़ती हैं तो कभी माली नुकसान उठाना पड़ता है। यूसी चेयरमैन हो या टाउन चेयरमैन, तमाम ही लोगों को अब फंड्स का बहाना भी सूट नहीं करता, क्योंकि मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने तमाम यूसी चेयरमैन को इलाकों में गटर के ढक्कन लगाने के लिए हर माह 1-1 लाख रुपए इजाफी फंड्स दिए हुए हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। वफाकी उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट के सामने उबलता हुआ गटर इलाका मकीनों और तुलबा के लिए शदीद अजियत बन चुका है। गंदा पानी सड़क पर फैल कर तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मजीद अहवाल जानते हैं आमिर आवान की इस रिपोर्ट में। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं मेन यूनिवर्सिटी रोड पर, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोड जो है वो किस कदर खस्ता हाली का शिकार है। K4 के मंसूबे की वजह से इस रोड पे जो खुदाई का काम जारी था इंतहाई सुस्तरवी का शिकार है। काम जो है नामुकम्मल छोड़ दिया गया है। काफ़ी अरसे से इस जगह पर जो है वो काम रुका हुआ है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये खुदाया हुकूमत सिंध को ये बोले 1 महीने का इन्होंने कहा था ये प्रोजेक्ट है, आज 3 महीने हो गए तकरीबन और ये प्रोजेक्ट अभी भी अनकम्प्लीट ही है। एक तरफ यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हज़ारों तलबा तालिबात रोज़ आते हैं और जैसा कि मेरे कैमरामैन साजिद अंसारी आपको दिखा सकें कि यहाँ पर किस कदर सीवरेज का पानी जो है वो रोड पर बहता हुआ नज़र आ रहा है। गलाजत का ढेर बना हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि हम किसी यूनिवर्सिटी के सामने के मनाजिर पेश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम कहीं मोइनजोदाड़ो में आ गए हैं। यहाँ पे सिविलाइजेशन का कोई नामो निशान नहीं है। ये रोड क्या यहाँ पे अरबाब इख्तियार हैं उनको नज़र नहीं आता? क्या जो इंतज़ामिया है वो सो रही है उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा? आवाम से यहाँ पे हमारी बात हुई, शदीद नाला नज़र आती है हुकूमत के रवैये पे, इस खामोशी पर कि ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हज़ारों तलबात आते हैं, तलबात आती हैं, लेकिन उसके बावजूद इस यूनिवर्सिटी का जो है बुरा हाल है। कोई पूछने वाला नहीं है, ना इस रोड पे चलने के लिए ट्रैफिक के लिए जगह है। मुझ नजर आते हैं। जी, एक मिनट। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का एक अहम और इजलास और रुकन कौमी असम्बली सरदार नबील गबोल की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें तफसीली ब्रीफिंग फराहम की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर तेजी से अमल दरामद जारी है। रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल की जेर सदारत लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक अहम इजलास हुआ। इजलास में रुकने सिंध असम्बली यूसुफ बलोच, वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी उस्मान हिंगोरो ने भी शिरकत की। इजलास में डायरेक्टर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट फहीम चाचड़ और म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान भी शरीक हुए। इजलास का हिस्सा डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो और नेस्पाक के नुमाइंदगान भी बने। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान ने इजलास में तरक्याती कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत सेवरेज के दरहम बरहम निजाम को
पहले मरहले में दुरुस्त किया जाएगा। लियारी की सड़कों को तामीरात समेत नए पार्क्स और ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।